Hello friends, myself Kanika Kukreja. I will teach you the business studies. Okay, now you will ask, ma'am, what is business studies? Right? The word studies, you understood what do you mean by the word studies? Now, what do you mean by the word business? What is business? Business has been derived from the two words busy and ness. Right? Busy and ness. Busy means busy रहना. किसी भी काम में हम बिजी हों that come under the category of business, right? Now you have a questions in your mind. किसी भी काम में busy रहना that is business? No. Further explain you. Let's take an example. I'm teaching you, right? I'm busy here, and the same business studies I will teach to my brother at my home. Again, I'm busy there, right? Now, what is the difference between it? मैं आपको पढ़ा रही हूँ जब भी मैं बिजी हूँ और सेम स्टडीज मैं अपने ब्रदर को घर जाकर कराऊंगी जब भी मैं बिजी होंगी, राइट? नाउ यू विल आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम अर्निंग अ मनी, right? And if I teach to my brother, I'm not earning a money there. That is my love and affection there, right? So in business studies there are two type of activities, right? First one is economic and non-economic. Economic activities are those activities from which we get the money. We do it for earning the money, or we earn our livelihood. जिस काम को करने से हमें मनी मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं, उनको उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट? एंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? We do not get any money in return of it. We only do as a love and for affection, or we will do it for sympathy, right? In business studies, though two types of activities are there, economic activities and non-economic activities. Economic activities को करने से हमें पैसा मिलता है और non-economic को activities को करने से हमें money, पैसा नहीं मिलता, right? In business studies, we do the business to earn the money, right? So in business studies, we do the economic activities, right? So economic activities has been further bifurcated into three: business, profession, and employment. While doing the business, we get the profit, and while doing the profession, we get the professional fee, and in the employment, we earn the salary, right? Now we will study the business. What is business? Business, जैसे मैंने आपको बताया था, being busy, किसी भी काम में busy रहना, that is business. Now further I will tell you what is the definition of business, right? It refers to an occupation, किसी भी काम में हम occupy रहे, in which people regularly engage in activities. हम जिस एक्टिविटी को रेगुलरली करें, कभी कभी नहीं, वी हैव टू डू द एक्टिविटी रेगुलरली. एक्टिविटीज कौन से होंगे? रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करें या किसी से परचेज करें, एंड सेल of which? Of goods and services. Why do we do this? With the view of earning profit. To earn the profit, we do these activities, right? So what do you mean by the term business? It refers to an occupation in which people regularly engage in activities relating to purchase, production
and sale of goods and services with a view of earning profit. Okay. Now further I will explain you the characteristics of the business. Now you will get the better understanding. स्टूडेंट्स अभी आपको इसमें लर्न कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अभी कंसेप्ट समझना है. सो आवर फर्स्ट फीचर इज़ बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैं कभी कोई भी काम करूँगी हमेशा मेरा मोटिव क्या रहेगा, मनी अर्न करना. मैं मोमोज़ बेचूँ, फ्रेंच फ्राइज़ बेचूँ या कुछ भी सेल करूँ, हमेशा मेरा मोटिव क्या होगा कि मुझे उससे पैसा मिले. राइट. सो सबका सपना क्या होता है इसमें, मनी का. सो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमेशा हमारा मोटिव क्या रहता है, टू अर्न द मनी, टू गेट द लाइवलीहुड. यस. सो द फर्स्ट वन इज बिजनेस इज़ एन इकोनॉमी. बेटा अब आपके माइंड में क्या आएगा कि हम अब मैम किस चीज़ का बिज़नेस करें. सो बेटा नेक्स्ट फीचर देखो, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखो, मुझे अपना रेडीमेड सूट का बिज़नेस करना. मैं वो सूट खुद तो प्रोड्यूस नहीं किया मैंने, मैं वो किसी से परचेस करूँगी और आगे उसको फर्दर सेल करूँगी. ठीक है. तो क्या इसमें क्या होगा, मैं वो चीज़ खुद प्रोड्यूस करूँ या प्रोक्योर करूँ. प्रोक्योर का मतलब क्या होता है, किसी से मैं चीज़ वो एक्वायर करूँ. राइट. सो बेटा नीचे सेकेंड पिक्चर देखिए, फर्नीचर की शॉप है. ये फर्नीचर खुद बना रहा है और आगे अपने ये कस्टमर को सेल करेगा. वो चीज़ किसी से ले और आगे सेल करे या वो चीज़ खुद प्रोड्यूस करे और फर्दर आगे कंज्यूमर को सेल करे. फर्स्ट पिक्चर में देखो, शॉपकीपर ने ब्रेड कहीं से ली है और उसको आगे फर्दर कंज्यूमर को बेची है. इट मीन्स उसने ब्रेड प्रोक्योर की है एंड देन ही हैड सेल इट टू द कंज्यूमर. सो स्टूडेंट्स हमने अभी तक दो फीचर्स किए हैं. फर्स्ट, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिस काम को हम करें और उससे हमें पैसा मिले. राइट. सेकेंड वन, अब हम किस चीज़ का बिज़नेस करें, वो हम खुद चीज़ प्रोड्यूस करें या प्रोक्योर करें. प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बहुत ऑब्वियसली बात है, अगर बिज़नेस करना है मुझे सेल करना पड़ेगा या किसी चीज़ को एक्सचेंज करना पड़ेगा. जैसे मैं घर पे खाना बना रही हूँ, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को खिला रही हूँ, मुझे वो करने से मनी मिल रहा है या कुछ सेल कर रही हूँ या एक्सचेंज हो रहा है मेरा, नहीं ना. सो ऑब्वियसली बात है, बिज़नेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब समझ में आ रहा है, हमने अभी तक 3 पॉइंट्स करे. बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसका करेंगे, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड द थर्ड वन, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, रेगुलर बेसिस. राइट. देखो इसमें ये मिस्टर एक्स है, ये अपनी कार बेच रहा है. राइट. उसने वन टाइम कार को बेची, डेली वो कार नहीं बेचा, उसने वन टाइम कार बेची. राइट. देखो आप बोलोगे मैम ये कार सेल करे, इट इज़ अ बिजनेस. इसमें बिजनेस का ये फीचर तो है, देखो इसने कार सेल की, कार बेची, वन ऑफ द पॉइंट, वन ऑफ द फीचर ऑफ द बिजनेस. कार बेचने से इसको पैसे मिला, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है. बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर ये भी होना चाहिए, इट शुड बी रेगुलर. एक बार थिंग को सेल करने से वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. सी द सेकेंड पिक्चर,
इस पर्सन की सेकेंड हैंड कार की शॉप है, राइट। सेकेंड हैंड कार की शॉप है तो वो कार्स को हम डेली बेचेगा, रेगुलर बेसिस पे बेचेगा, देन इट इज़ अ बिजनेस। सो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हुआ? द characteristic of a business, it should be regular, irregular should not be there, right? नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रॉफिट अर्निंग। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो बिज़नेस कैसे चलेगा? हमारा सबसे मेन मोटिव क्या होता है? जब भी हम बिज़नेस करें हमें प्रॉफिट आना चाहिए, है ना। गुड्स प्रोक्योर करना, एक्सचेंज करना, रेगुलरली एक्सचेंज करना और प्रॉफिट कमाना। अब एक बात बताओ, क्या ज़रूरी है कि हम बिज़नेस करें हमें प्रॉफिट आएगा ही आएगा? क्या सैलरी फिक्स होती है, हमें आएगी ही आएगी? सैलरी फिक्स होती है, हाँ सैलरी फिक्स होती है, हमें आएगी ही आएगी। क्या प्रॉफिट फिक्स होता है बिजनेस में कि हमें आएगा ही आएगा? नहीं ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने सब कुछ किया, कैपिटल लगाई, मेहनत की, लेकिन रिटर्न जितना हमें चाहिए था उतना नहीं मिला। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बिजनेस में प्रॉफिट अनसर्टेन होते हैं। पिक्चर में देखो, फर्स्ट मंथ इनकम 50,000, एक्सपेंसेस 30,000, इट मीन्स प्रॉफिट है हमारा। मंथ 2 में इनकम हुई 60,000 की, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए? 70,000 के। हमें प्रॉफिट हुआ नहीं ना, इट मीन्स ये अनसर्टेन है हमारा। अब मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। अगर देखो मेरी रातों रात दुकान में चोरी हो जाए, मेरी दुकान जल जाए, तो फिर रिस्क कौन बियर करेगा? मैं ही ना। बिजनेस में जो भी रिस्क हो ये सारा खुद पर्सन को बियर करना पड़ता है। क्या सैलरी में हमें होता है कि हम काम पे जा रहे हैं और हमें सैलरी ना मिले? नहीं, सैलरी में ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, बिजनेस में हमें रिस्क बियर खुद करना पड़ता है, बिकॉज हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, द पर्सन हैव टू बियर इट इटसेल्फ। मैंने आपको सारे फीचर समझाए, समझ में आए, राइट? क्लियर। अब हमें क्या थी बिजनेस की डेफिनेशन? हम अपने आप को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई। कैसे? रेगुलरली। क्या कैसे हम अपने आप को ऑक्यूपाई करेंगे? चाहे हम वो प्रोड्यूस करें या किसी से परचेज करें। क्या? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। बिजनेस में हमारा मोटिव क्या था? विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मैंने आपको अब जितने भी फीचर्स बिजनेस स्टडीज़ के करवाए हैं वो आपको समझ में आए, राइट? अब द क्वेश्चन इन द माइंड कि हमें कंसेप्ट तो समझ में आ गया, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमें ये लर्न भी करना है। सो मैंने आपके लिए लर्निंग ईजी करने के लिए कुछ निमोनिक स्टडी की है, बिकॉज इन बिजनेस स्टडीज़ इट इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, देयर आर लॉट ऑफ concepts. So each and every topic we have to learn. So mnemonic say you will get the help in learning, right? So feature of business studies का mnemonic क्या है? प्यारे रणवीर सिंह, कैसे रहना? प्योर रहना। जैसे बिजनेस प्योर रहना है, सो फीचर ऑफ बिजनेस का mnemonic क्या हमने किया है? प्यारे रणवीर सिंह, प्योर रहना। प्यारे का पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट,
as one of the main motive of the business is to get the profit. Yes, रणवीर का आर लेंगे बेटा, दैट आर स्टैंड्स फॉर रिस्क. जैसे हमारा बिजनेस है, उसमें हमारी आग लग गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई या किसी हमारे सामान की चोरी हो गई, वो बियर कौन करेगा? रिस्क, प्रोप्राइटर. यस, सो आर इज फॉर रिस्क. एस, सिंह का एस स्टैंड्स फॉर सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. As I had explained you that in business we do the sale and exchange. हम किसी चीज़ को सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं टू गेट द मनी. यस. नेक्स्ट, प्योर रहना. प्योर का पी से क्या? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम बिज़नेस में क्या करते हैं? कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं या प्रोक्योर करते हैं, एक्वायर करते हैं. किसका? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यू स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. क्या जितना हमने बिज़नेस पे एक्सपेक्ट किया था हमें प्रॉफिट होगा, वो हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये अनसर्टेन होता है. आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर. हम कोई भी काम करें वो हमारा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. एक बार कोई भी ट्रांजैक्शन करने से, एक बार कोई भी चीज़ बेचने से वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा. द ट्रांजैक्शन शुड बी रेगुलर. एंड ई फॉर इकोनॉमिक. एज यू नो, हम सब ये क्यों करते हैं? टू गेट द मनी. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड बी देयर. सो व्हाट इज द निमोनिक ऑफ फीचर ऑफ बिजनेस? प्यारे रणवीर सिंह क्या रहना? प्योर रहना. पी, प्रॉफिट. रणवीर आर का रिस्क. एस, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Then P stands for production and procurement of goods and services. Then U, uncertainty of return. R stands for regular. E stands for economic. प्यारे रणवीर सिंह, प्योर रहना. राइट, अब ये समझ में आया. मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, बिजनेस क्या होता है ये समझाया, फीचर्स आपको समझ में आ गए. नाउ अब हमें लर्न करना है. आई विल प्रोवाइड यू सम नोट्स सो दैट यू कैन लर्न इट ईजिली.